जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 33। अक्षराणामकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार और समासों में उभय पद प्रधान द्वंद्व हूँ। निमेष मुहूर्त आदि अक्षय काल मैं ही हूँ और सर्वतोमुख अर्थात चारों ओर से मुखों वाला धाता यानी ब्रह्मा मैं हूँ। स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं उन सब में अकार सबका आदि है और वही सब में व्याप्त है। द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों में श्रेष्ठ है। अक्षय काल सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत और नित्य पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, जबकि काल, कल्प, युग, वर्ष, मास, दिन, घड़ी और क्षण आदि समयवाचक हैं। सबका धारण पोषण करने वाला सर्वव्यापी विश्व रूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। आध्यात्मिक भाव। ओंकार रूपी परमेश्वर शरीर के भीतर सर्वत्र अनुभव हो सकता है, परंतु दो स्थानों में कूटस्थः विशेष रूप से अनुभव गम्य है, भ्रूमध्य और मूलाधार में। आत्मा अव्यक्त और नित्य है। मूलाधार में प्राण वायु के गमन करने पर समस्त सृष्टि की क्षमता होती है। प्राण वायु के ऊर्ध्वगामी होने पर चक्षु के द्वारा अरूप का रूप देखता है। कर्ण के द्वारा अशब्द का शब्द ओंकार ध्वनि सुनता है। जो श्रुति है ध्वन्यात्मिक है। जिह्वा के द्वारा अरस के रस का आस्वादन करता है। नासिका में अगंध की गंध, नाना द्रव्यों और पुष्पों की गंध मिलती है। यह एक ब्रह्म वस्तु ही अपने को अनेक भावों में अनुभव करती है। Of letters, I am the letter A, and among compounds, I am the dual Dvandva word. I am also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma, whose manifold faces turn everywhere. The homogeneous sum total of the sound in the cosmos is Om. The very first phase of this monosyllable is the letter A, the modifications of which form the other letters. Word compounds in Sanskrit conform to certain principles. While compounding themselves, when two words retain equal importance, they are called the dual and dvandva. A moment, an hour, a day, a year, divisions of time such as these have their beginnings and ends. But time in itself is beginningless and endless, and it is equated with God, who is called Mahakala. Spiritual significance. Brahman, the unmanifest reality, manifests itself as Nada Brahman or sound reality. The universe is the gross manifestation of sound reality. This sound reality, Nad Brahman, Omkar, is vibratory. It can be experienced but cannot be pronounced. It is Shruti. It is the sound of the Atman, Omkar, the Paramatman.
It is vividly experienced at Muladhar and Bhumadhya. When Pranvayu rises into the upper chakras, Urdhvagami, and its movement is upward, the eyes of such a sadhak sees the unseen. His ears hear the divine sound Om. His tongue tastes the Atmic nectar, and his nose experiences the smell of divine flowers. Finally, the self realizes itself and merges with the reality, the Paramatman. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 33 అక్షరాణమకారోస్మి ద్వంద్వ సామాసికస్వచ అహమేవాక్షయకాలో ధాతాహం విశ్వతోముఖః. నేను అక్షరముల్లో అకారాన్ని, సమాసముల్లో ప్రధానమైన ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నిమిషము, ముహూర్తము మొదలైన అక్షయకాలాన్ని నేనే, మరియు సర్వతోముఖము అనగా నలువైపులా ముఖములు గల ధాత అనగా బ్రహ్మను కూడా నేనే. స్వరము మరియు హల్లులు లేదా గుర్తు మొదల అక్షరములు ఎన్ని ఉన్నవో వీటన్నిటిలో అకారము అన్నిటికీ మొదటిది. ఇదే అన్నిటి యందు వ్యాపించి ఉన్నది. ద్వంద్వ సమాసముల్లో 2 పదముల అర్థమునకు ప్రాధాన్యత ఉన్న కారణమున అది అన్య సమాసములలో శ్రేష్టమైనది. అక్షయకాలము సనాతనము, శాశ్వతము, అనాది, ఆనందము మరియు నిత్యము, పరబ్రహ్మ పరమాత్మిక స్వరూపము. కాలం అనేది కల్పము, యుగము, వర్షము అంటే సంవత్సరం, మాసము, దినము, గడియ మరియు క్షణము మొదలగు సమయ సంకేతములు కలిగి ఉంటుంది. అన్నిటినీ ధరించి పోషించేవాడు సర్వవ్యాపి విశ్వరూపైన బ్రహ్మ కూడా నేనే. ఆధ్యాత్మిక భావం ఓంకార రూపుడైన పరమాత్మ శరీరం లోపల అంతటా అనుభవం అవుతాడు. అయితే 2 స్థానములందు కూటస్థులు ప్రత్యేకంగా అనుభవం అవుతాడు. అవి 1 భూమధ్యము, 2 మూలాధారము. ఆత్మ అవ్యక్తము మరియు నిత్యమైనది. మూలాధారములోకి ప్రాణవాయువు ప్రవేశించినప్పుడు సమస్త సృష్టి యొక్క సామర్థ్యం కలుగుతుంది. ప్రాణవాయువు ఊర్ధగామి అయినప్పుడు కన్నుల ద్వారా అరూపుని యొక్క రూపాన్ని చూస్తాడు. చెవుల ద్వారా శృతి అంటే ధ్వనాత్మకమైన శబ్దము కాని శబ్దాన్ని అంటే ఓంకారధ్వని వింటాడు. జిహ్వచే రసముగా రసం యొక్క ఆస్వాదన చేస్తాడు. నాసికెందు వాసన కాని సువాసన నానా ద్రవ్యములు మరియు పుష్పముల సువాసన చేరుతుంది. ఒకే ఒక బ్రహ్మ వస్తువే అనేక అనేక భావాల్లో అనుభవం అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 33. हे अर्जुना, मी अक्षरांमध्ये निराकार आहे आणि संयुग्मांमध्ये द्वैत आहे. म्हणजेच 2 शब्दांचे प्रमुख, निमेष आणि मुहूर्त इत्यादी. मी अक्षय काळ आहे आणि मी सर्वतोमुख आहे. म्हणजे सर्व बाजूंनी मुख असलेला मी धता आहे, म्हणजेच ब्रह्म आहे. स्वर आणि व्यंजने इत्यादी सर्व अक्षरापैकी रूप हा त्या सर्वांचा आरंभ आहे आणि तो त्या सर्वांमध्ये प्रचलित आहे. दवंडव समासातील दोन्ही पदांच्या अर्थांच्या महत्वामुळे ते इतर समासांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अक्षय काळ, सनातन, शाश्वत, अनादी, शाश्वत आणि हे परमात्म्याचे खरे स्वरूप आहे. तर काल म्हणजे कल्प, युग, वर्ष, महिना, दिवस, तास, क्षण इत्यादी. मी सर्वव्यापी वैश्विक ब्रह्म आहे जो सर्वांचे पालन पोषण करतो. आध्यात्मिक अर्थ. ओंकार स्वरूपातील ईश्वरांचा अनुभव शरीरात सर्वत्र घेता येतो. तथापि त्याचा अनुभव विशेषतः 2 ठिकाणी येतो. नंबर 1 कूटस्थ म्हणजे भुवयांच्या सर्वातील आतील भाग आणि मूलाधार, मस्तकाचा मूळ आधार. आत्मा अव्यक्त आणि शाश्वत आहे. जेव्हा प्राणशक्ती प्राणवायू मूलाधारातून मस्तकाच्या मूळ आधारातून प्रवाहित होते तेव्हा तिच्यामध्ये संपूर्ण विश्वाची क्षमता असते. जेव्हा प्राणशक्ती प्राणवायू वरच्या दिशेने जातो तेव्हा ती डोळ्याद्वारे
निराकार रूप पाहते. कानाद्वारे ती शब्दरहित ओंकाराची ध्वनी ऐकते, जो श्रुती नाद आहे. जिभेद्वारे ती साराची चव घेते. नाकाद्वारे ती विविध पदार्थ आणि फुलांचा सुगंध घेते. ही एकच ब्रह्मसत्ता स्वतःला अनेक रूपात अनुभवते. अक्षरांमध्ये मी हे अक्षर आहे आणि समासिक शब्दांमध्ये मी द्विवचन आहे. मी अक्षय काळही आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये मीच ब्रह्म आहे, ज्याची अनेक रूपे सर्वत्र फिरतात. विश्वातील ध्वनींची एकसंध बेरीज ओम ही अशी आहे. या एकाक्षरी शब्दांची सर्वात पहिली अवस्था हे अक्षर आहे, ज्याच्या विविध रूपातून इतर अक्षरे तयार होतात. संस्कृतमधील समासिक शब्द काही विशिष्ट तत्वांचे पालन करतात. जेव्हा दोन शब्द समान महत्व टिकवून ठेवतात, तेव्हा त्यांना द्विवचन आणि द्वंद्व असे म्हटले जाते. क्षण, तास, दिवस अशा काळांच्या विभागांना सुरुवात आणि शेवट असतो, परंतु काळ स्वतः अनादी आणि अनंत आहे आणि त्याला महाकाल नावाच्या देवाशी एकरूप मानले जाते. आध्यात्मिक महत्व. ब्रह्म जे अव्यक्त सत्य आहे ते नाद ब्रह्म किंवा ध्वनी सत्याच्या रूपात स्वतःला प्रकट करते. ब्रह्मांड हे ध्वनी सत्याचे स्थूल प्रकटीकरण आहे. हे ध्वनी सत्य नाद ब्रह्म ओंकार कंपनात्मक आहे. त्याचा अनुभव घेता येतो, पण त्याचा उच्चार करता येत नाही. ती श्रुती आहे. तो आत्म्याचा ओंकार म्हणजेच परमात्म्याचा नाद आहे. मूलाधार आणि भूमध्य चक्रात जेव्हा प्राणवायू ऊर्ध्वगामी चक्रात आरोहण करतो आणि त्याची गती ऊर्ध्वगामी असते, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अनुभव होतो. अशा साधकांचे डोळे अदृश्य पाहतात, त्याचे कान ओम हा दिव्य नाद ऐकतात, त्याची जीभ आत्मिक अमृताची चव घेते आणि त्याचे नाक दिव्य फुलांचा सुगंध अनुभवते. अखेरीस आत्म्याला स्वतःची जाणीव होते आणि तो सत्यामध्ये म्हणजेच परमात्म्यामध्ये विलीन होतो. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 33. അക്ഷരാണാമകാരോ അസ്മിദുന്ദഃ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോ മുഖഃ. ഹേ അർജുന, അക്ഷരങ്ങളിൽ ഞാൻ അകാരമാണ്. സമാസങ്ങളിൽ അഥവാ ഇരുപദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ദ്വന്ദ്വസമാസം ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിമിഷം, മുഹൂർത്തം തുടങ്ങിയ സമയവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അക്ഷയകാലം ഞാൻ തന്നെയാണ്. സർവദിശകളിലേക്കും മുഖങ്ങളുള്ള ദാതാവായ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോ അവയിലെല്ലാം അകാരമാണ്. ആദി അതുതന്നെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വസമാസത്തിൽ രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും അർത്ഥങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ അത് മറ്റു സമാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അക്ഷയകാലം എന്നത് സനാതനവും ശാശ്വതവും അനാദിയും അനന്തവും നിത്യവുമായ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപമാണ്. എന്നാൽ കാലം എന്നത് കൽപ്പം, യുഗം, വർഷം, മാസം, ദിവസം, ഘടി, ക്ഷണം തുടങ്ങിയ സമയവിഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും ധരിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർവവ്യാപിയായ വിശ്വരൂപ ബ്രഹ്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മീയഭാവം. ഓംകാര സ്വരൂപനായ പരമേശ്വരനെ ശരീരത്തിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഭ്രൂമധ്യത്തിലും മൂലാധാരത്തിലും, ആ ആത്മഭാവം പ്രത്യേകമായി ലഭ്യമാണ്. ആത്മാവ് അവ്യക്തവും നിത്യവുമാണ്. പ്രാണവായു മൂലാധാരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ശക്തി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രാണവായു മേലോട്ടുയരുമ്പോൾ സാധകന് കണ്ണുകളിലൂടെ അരൂപത്തെ കാണാൻ കഴിയും. കാതുകളിലൂടെ ശബ്ദരഹിതമായ ഓംകാരനാദം കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ശ്രുതി നാദരൂപം. നാവിലൂടെ രസരഹിതത്തിന്റെ ദിവ്യരസം ആസ്വദിക്കാനും മൂക്കിലൂടെ ഗന്ധരഹിതമായ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും.
വിവിധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും സുഗന്ധം അവന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെ അനേകം ഭാവങ്ങളിലൂടെ സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अक्षरानामकारो अस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः. हम अक्षर सब में आकार छी, आ समास सब में द्वंद्व समास छी. हम ही अक्षय काल छी, आ चारू दिस मुख वाला समस्त सृष्टि के धारण पोषण कर वाला धाता माने ब्रह्मा से हो हम ही छी. स्वर आ व्यंजन आदि जतेक अक्षर अछि ओहि सब में अ सबसँ पहिल आ मूल अक्षर अछि. ओ समस्त अक्षर सब में व्याप्त अछि. एहि कारण भगवान आकार के अपन स्वरूप कहलखिन. द्वंद्व समास में दुनू पद के अर्थ समान रूपेण प्रधान होइत अछि. एहि विशेषता के कारण ई आन समास सब में सबसँ श्रेष्ठ मानल गेल अछि. एहि कारण भगवान द्वंद्व समास के अपन स्वरूप कहलखिन. अक्षय काल सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत आ नित्य पर ब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप अछि. असामान्य काल शब्द कल्प, जुग, बर्ख, मास, दिन, घड़ी आ क्षण आदि समय के वाचक अछि. समस्त जगत के धारण पोषण करय वाला सर्वव्यापी विश्व रूप ब्रह्मा सेहो भगवान के स्वरूप हम ही छी. ओंकार रूपी परमेश्वर के अनुभव शरीर में सब ठाम कयल जा सकैत अछि, मुदा दूटा स्थान पर ओ विशेष रूप से अनुभव गम्य होइत अछि. भ्रूमध्य आ मूलाधार में. आत्मा अव्यक्त आ नित्य अछि. जखन प्राण वायु मूलाधार में संचारित होइत अछि तखन ओहि में संपूर्ण सृष्टि के क्षमता रहैत अछि. आ जखन प्राण वायु ऊर्ध्वगामी होइत अछि तखन साधक चक्षु के माध्यम से अरूप के रूप के दर्शन करैत अछि. कान के माध्यम से अशब्दक शब्द के, ओंकार ध्वनि के श्रवण करैत अछि. साधक के श्रुति स्वरूप ध्वन्यात्मिक अनुभव होइत अछि. ओ जिह्वा से अरस के रस के आस्वादन करैत अछि. नासिका में अगंध के गंध के अनुभव होइत अछि आ नाना प्रकार के द्रव्य आ पुष्प सब के सुगंध के अनुभूति होइत अछि. वास्तव में ई एकटा ब्रह्म तत्व अछि जे अपना के अनेक भाव में अनुभव करैत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.